So students, now we are going to start the numerical based on pressure volume type of work. For solving this numerical, we are taking the help of some formulas. The work done for pressure volume type of work is given by the formula W is equal to minus P external into V2 minus V1, or W is equal to minus P external into delta V. For that purpose, we have required some conversions. You can convert when 1 joule is equal to 1 Pascal into meter cube, when 1 bar is equal to 10 raised to power 5 Pascal, and 1 dm cube into bar is equal to 100 joule. So they are asking the numericals to calculate the work done in joule. They are asking the numerical calculate the work done into bar into dm cube. So 1 dm cube into bar is equal to 100 joule. Joule is converted into bar into dm cube by dividing by 100, and dm cube into bar is converted into joule by multiplying 100. So it is how to done, we will see in the numerical. So numerical is that 3 moles of an ideal gas are expanded isothermally from 15 dm cube to 20 dm cube at constant external pressure of 1.2 bar. Estimate the work done in dm cube into bar and joule. So first of all, we are going to calculate the work done in dm cube into bar. Then we will convert it into joule by multiplying 100. So what is given? First of all, we are going to write 3 moles means N is equal to 3. Ideal gas expanded isothermally from 15 dm cube means first volume is given 15 dm cube. Second volume is given 20 dm cube. At constant external pressure means P external is given, it is 1.2 bar. And what we have to do? Estimate the work done means W is equal to what? So we have to calculate W in, first of all, dm cube into bar, and we have to calculate W is equal to what? In joule. So we are going to calculate the work done first of all in dm cube into bar, because pressure is given in bar and change in volume is given dm cube. By using the formula, we can use the formula W is equal to minus P external into V2 minus V1. So P external is given, sign is negative. What is P external? 1.2. Change in volume V2 is given 20 minus V1 is given 15. So minus 1.2 as it is. 20 minus 15, the answer will be 5. And 12 5s are 60. 6.0, and answer will be minus. So that is the calculation. What is the unit? Pressure is expressed in the bar and volume is expressed in dm cube. The answer will be in bar into dm cube. So you can convert bar into dm cube into joule by just multiplying 100. 1 dm cube into bar is equal to 100 joule. So W is equal to minus 6.0 into 100. Bar into dm cube is now replaced by joule. So W is equal to, it is multiplied by 100 means 2 digit right side, minus 600 joule. So in this way we can calculate the work done. So we are going to solve the numericals. जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल है उसको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए. उसमें क्या डाटा दिया है वो लिख लेना चाहिए, क्या निकालना है वो लिख लेना चाहिए, और उसके बाद वो अप्लाई करना चाहिए. क्या है न्यूमेरिकल? 3 moles of an ideal gas are expanded isothermally. So 3 moles means N is equal to 3. आइडियल गैस एक्सपांडेड आइसोथर्मली, हियर रिवर्सिबल वर्ड है क्या? नहीं है. अगर रिवर्सिबल वर्ड रहता है तो इसका मतलब W मैक्स निकालना है. रिवर्सिबल वर्ड नहीं है, इसका मतलब है इरिवर्सिबल है. फ्रॉम 15 dm cube टू 20 dm cube मीन्स पहला वॉल्यूम दिया है 15 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू 15 dm cube, दूसरा वॉल्यूम दिया है V2 इज इक्वल टू 20 dm cube. ओके,
उसके बाद क्या बोलता है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1.2 बार, इस प्रेशर दिया है पी एक्सटर्नल 1.2 बार, और उसके बाद बोला है एस्टिमेट वर्क डन इन डीएम क्यूब इनटू बार एंड जूल. सो वी हैव टू कैलकुलेट W इज इक्वल टू व्हाट इन डीएम क्यूब इनटू बार एंड सेम W इज इक्वल टू व्हाट इन जूल. इसका मतलब क्या है, हम लोगों को वर्क डन निकालना है किस यूनिट में, डीएम क्यूब इनटू बार, और उसको कन्वर्ट करना है फिर जूल में. वो सिंपल है, जो आंसर आएगा वो आएगा डीएम क्यूब इनटू बार में, उसको 100 से अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका कन्वर्शन होता है जूल में, क्योंकि फॉर्मूला है 1 डीएम क्यूब इनटू बार इज इक्वल टू 100 जूल. सो वी आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1. वर्क डन निकालने का फॉर्मूला है W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1. इस फॉर्मूला में देखेंगे पी एक्सटर्नल की वैल्यू दी है 1.2 बार, पर साइन कैसा है, नेगेटिव. उसके बाद V2 दिया है 20 डीएम क्यूब 20, उसके बाद है माइनस माइनस, उसके बाद V1 दिया है 15 डीएम क्यूब. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस माइनस 1.2 एज इट इज, 20 minus 15 answer will be 5. Okay, and minus 1.2 into 5, 12 5 is 60, वन डिजिट के बाद 0, इसीलिए मैंने 0 दे दिया. इसके बाद उसका यूनिट निकालेंगे, क्या यूनिट आएगा, वर्क डन. पी एक्सटर्नल किस क्वांटिटी में है, बार में, और वॉल्यूम चेंज किस में है, डीएम क्यूब. दैट्स व्हाई आंसर इज बार इनटू डीएम क्यूब. नाउ दिस कन्वर्शन इज वेरी सिंपल. W इज इक्वल टू माइनस 6.0 बार इंटू डीएम क्यूब, और उस वर्क डन को हम जूल में कन्वर्ट करते हैं तो उसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है. सो W इज इक्वल टू माइनस 6.0 बार इंटू डीएम क्यूब. नाउ वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू जूल, देयरफॉर मल्टीप्लाई बाय 100. सो 6.0 मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू जूल. सो किसी क्वांटिटी को 100 से मल्टीप्लाई करता है तो उसका जो पॉइंट है वो 2 डिजिट राइट साइड में जाता है. 600.0 मीन्स 600 जूल, और साइन कैसा है, नेगेटिव. सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन. समझ गए, ये जो कैलकुलेशन किया हमने, इसलिए सबसे पहले न्यूमेरिकल पढ़ा. उस न्यूमेरिकल में क्या बोला है, 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपांडेड आइसोथर्मली फ्रॉम 15 डीएम क्यूब टू 20 डीएम. n इज इक्वल टू 3, इसकी जरूरत नहीं है, W मैक्स में इसकी जरूरत है, लेकिन हमको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने n की वैल्यू दी. उसके बाद पहला वॉल्यूम कितना दिया है, 15 डीएम क्यूब, V1 हो गया. उसके बाद 20 डीएम क्यूब, ये क्या हो गया, V2 20 डीएम क्यूब. उसके बाद कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 1.2 बार, P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1.2 बार. प्रेशर जो दिया है एक्सटर्नल प्रेशर 1.2 बार में दिया है, और वॉल्यूम जो है वो डीएम क्यूब में दिया है. इसका मतलब हम लोगों को वर्क डन जो निकालना है वो पहले बार इंटू डीएम क्यूब में आएगा, और उसके बाद उसको हम जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं. बार इंटू डीएम क्यूब को जब 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, जूल में. सो वी हैव टू कैलकुलेट W इज इक्वल टू व्हाट इन डीएम क्यूब इनटू बार, W इज इक्वल टू व्हाट इन जूल. इसके बाद आता है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना. सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है, तुमको फॉर्मूले पूरे याद रहने को होना है. न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद हमारे पास क्या दिया है, n नंबर ऑफ मोल्स दिया है, उसके बाद P एक्सटर्नल दिया है, उसके बाद वॉल्यूम चेंज दिया, V1 दिया है, V2 दिया है. इसका मतलब हम लोगों को W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1 ये फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि हमारे पास P एक्सटर्नल है और V1 और V2 है. ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिखा हमने. उस फॉर्मूला में P एक्सटर्नल की वैल्यू कौन सी साइन है, माइनस. P एक्सटर्नल कितना है, 1.2 और साइन माइनस है. उसके बाद V2 की वैल्यू क्या है, 20. उसके बाद V1 की क्या है, 15. 20 माइनस 15 क्या हो गया, 5. और ये 1.2 वैसा का वैसा इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, 12 5 60. उसके बाद एक डिजिट के बाद 0, साइन माइनस ही रहेगा, और यूनिट क्या आ गया, बार इंटू डीएम क्यूब. क्यों, क्योंकि प्रेशर किस में दिया है, बार में, और वॉल्यूम किस में है, डीएम क्यूब. सो W इज इक्वल टू माइनस 6.0 बार इंटू डीएम क्यूब. उसके बाद उसको कन्वर्ट किस में करना है, जूल में करना है. वर्क डन 2 क्वांटिटी में निकालना है, पहली है बार इंटू डीएम क्यूब और दूसरी है जूल. इसीलिए W इज इक्वल टू माइनस 6.0 इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो बार इंटू डीएम क्यूब किस में कन्वर्ट हो गया, जूल में.
और किसी भी क्वांटिटी को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट उसका 2 डिजिट राइट साइड में चेंज होता है, डिस्प्लेस होता है 6.00, सो इट कन्वर्ट इन 600.0 मीन्स -600 जूल। ये हो गया उसका आंसर।